Welcome back to Engraving Mind. Today we are going to talk about number system. As we already know that this chapter is very important with the point of view of class 9. So one by one we are going to cover all the important aspects of number system. So whenever we are going to talk about number system, the first number that will come in our mind is a natural number. So if I will say that this one is a natural number, as it is already clear from the name that any number that we are using in our day-to-day life for the counting purposes are known as natural number. Example 1, 2, 3, 4 like that. These all are your natural number. Means the number which we are using for our counting purpose in our day-to-day life are called as natural number. When we will combine natural number along with the zero, then the complete number system will become your whole number. So simply we can say that if you will combine 0 along with natural number, then it will be converted into whole number. तो ये आपका बन जाएगा whole number. Again, if I am going to combine whole number along with negative integer, मतलब अगर हम whole number के साथ negative integer को भी involve कर लें तो वो हमारा बन जाएगा integers. It means negative integer means -1, -2, -3, -4. तो this circle is generally denoting your integer. ये जो circle है ये आपको integer के बारे में information दे रहा है. It means negative integer along with 0 along with natural number. And one more important aspect we can say that every integer is a kind of natural number, but vice versa is not correct. If again we are going to combine it with a rational number, इसके थ्रू अब हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं रेशनल नंबर के थ्रू. तो यू ऑलरेडी नो दैट एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर. सो आई कैन से एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q बोथ हैव प्राइम फैक्टर 1. p और q दोनों के पास प्राइम फैक्टर कौन से होने चाहिए? 1 होने चाहिए. इट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस देम इन शॉर्टेस्ट or reducible form so that these numbers are called as rational number. So today we are going to discover or talk about rational number in very detailed manner. But यहाँ तक अभी story finish नहीं होती है. Further if you are going to talk about then another type of number that will come, it is called as irrational number. यानी कि जो rational number को cover up करता है उसको हम बोलते हैं irrational number. तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है जो rational number को भी cover कर रहा है, that these types of numbers are called as irrational number. अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे जैसे हम वीडियो की सीरीज में आगे बढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में भी बात करना स्टार्ट कर देंगे. जनरली ऐसा बोला जाता है ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके. इट मीन्स द नंबर दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज irrational number. There are various examples of irrational number like we can say √2 is a kind of irrational number, √3, √5, √7, even pi. These all are your irrational number. If we are going to sum up all these number from natural number to whole number to integers to rational number to irrational number, then there is a formation of real number. It means real number is the union of all these numbers. So again I am going to draw a circle and I will present the real number. So again this one is your circle and this circle will contain all the number. That is why it is a kind of your real number. ये हो गया तुम्हारा real number. और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इररेशनल नंबर. इट मींस रियल नंबर कंटेन्स रेशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर. लेकिन अभी यहाँ पर भी स्टोरी फिनिश नहीं होती है. इन योर हायर क्लासेस यू विल लर्न अनदर टाइप ऑफ नंबर एंड दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसको भी जो पेरिफेरी के अलोंग एक्युमुलेट करेगा दैट नंबर इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर. एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib is called your complex number in which a plus ib in which a जो होता है इसको बोलते हैं तुम्हारा रियल पार्ट और जो ib होता है इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट. So if you are going to talk about in very detailed manner, so your number system consists of total these many types of number. It means it will always started from your natural number. In your lower classes like your class 6, 7, you will learn about natural number. It means how you will represent the natural number on a number line. Again after that whole number, second portion is your whole number. Then third one is your integers. Integers is a combination of negative as well as positive integer. Along with that fourth one is your rational number. It means any number that can be written in the form of p/q where q does not equal to 0 and p and q both contains co-prime factor. या means co-prime factor या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1. ऐसे नंबर को हम बोलते थे रेशनल नंबर. फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने बताया आपको इररेशनल नंबर. इट मीन्स अ काइंड ऑफ नंबर दैट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड. मीन्स
आफ्टर डेसिमल इनकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू चलती रहेगी और इसको आप कभी टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, ना ही तो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस टाइप के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। वी कैन से √2 1.4142315 लाइक दैट। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib in which a is your real part and ib is your imaginary part. One more important information about this number system, you can say that every complex number is a real number but vice versa is not correct, and you can apply this method in each and every aspect of number system. With the same way, you can say every whole number is a natural number but vice versa is not correct, or you can say every rational number is a kind of integer but vice versa is not correct. So this one is all about number system. Because today we are going to pick about the important part is rational number, तो अब हम लोग rational number के बारे में बात करेंगे. So your next topic, our next slide will be rational number. तो आपको ऑलरेडी पता है any number that can be written in the form of p by q. क्योंकि रेशनल नंबर को ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक का पोर्शन बोलता है रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है एनीथिंग दैट कंटेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो रेशनल नंबर मींस एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 and the most important part, p and q have only one common factor, और वो कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? वो कॉमन फैक्टर होता है 1 ओनली. इट मीन्स p and q आर को प्राइम फैक्टर. तो ऐसे नंबर को आप बोलते हो रेशनल नंबर. इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू से 1/2, यस इट इज अ काइंड ऑफ रेशनल नंबर. बट इफ आई एम गोइंग टू से 100/200, तो यस इट इज अ काइंड ऑफ रेशनल नंबर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिड्यूस इट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका मतलब इनमें 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो तुमको इसको लोवेस्ट फॉर्म पर लेकर आना पड़ेगा, और फिर यू विल डिसाइड कि गिवन नंबर इज योर रेशनल नंबर और नॉट. Our second topic is कि how will you present a rational number on a number line. As you already know, बचपन से काम करते चले आ रहे हो कि तुमने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा. क्लियर है बात? तुमने बीच में 0 एज्यूम किया था. आई कैन टेक वन एग्जांपल सो यू कैन गेट अ क्लियर इनसाइट अबाउट दैट. सपोज दिस वन इज अवर नंबर लाइन. मिड में कहीं पे 0 आता था, मिड पे हमारा कहीं पे 0 आता था इस तरह से. राइट हैंड साइड द नंबर विल बी लुक लाइक दैट, +1 +2 +3 +4, और इसी तरह लास्ट वन प्लस इनफाइनाइट. और लेफ्ट हैंड साइड में आता था -1 -2 -3 -4 लाइक माइनस इनफाइनाइट. So this one is a kind of normal number line that you already know from your lower classes. So today we are going to talk about how will you present a kind of rational number on a number line. तुम number line पे rational number को कैसे represent करोगे? So I want to pick this concept with a very plinth level, क्योंकि तुमने कभी ना कभी सेंटीमीटर स्केल तो देखा ही होगा. जब तुम सेंटीमीटर स्केल को ऑब्जर्व करोगे तो उस सेंटीमीटर स्केल में तुम पाओगे कि होता यह है कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कुछ डिवीजन होते हैं. मतलब कहने का मतलब यह है कि सपोज दिस वन इज योर सेंटीमीटर रूलर स्केल. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा. ये तुम्हारी सेंटीमीटर स्केल है जो तुमको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है. अब इस सेंटीमीटर स्केल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है. 0, देन देयर आर टोटल स्मॉल डिवीजन, एंड देन फिर अगेन 10 डिवीजन के बाद आता है 1 सेंटीमीटर. इस डिस्टेंस को तुम क्या बोल देते हो? दिस डिस्टेंस इज योर 1 सेंटीमीटर. और इस तरह तुम्हारी सेंटीमीटर स्केल 15 सेंटीमीटर पे आकर इंड हो जाती है. यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. तुम इस कॉन्सेप्ट को स्केल उठा के चेक भी कर सकते हो. इफ आई एम गोइंग टू कन्फाइन और आई एम गोइंग टू जूम दिस पार्ट, अगर मैं इस पार्ट को जूम करूं तो तुमको क्या दिखेगा? अब मैं इस पार्ट को जूम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना. ये 0 हो गया, ठीक, और यहाँ कहीं पे 1 है, यहाँ कहीं पे 1 लिखा है, और यहाँ पे डिवीजन है. हाउ मेनी डिवीजन आर ओवर देयर? इफ आई एम गोइंग टू काउंट 0 and 1, total 10 divisions are over there. So we can say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It means this division, can I say 1/10 of 1 centimeter or not? Yes, we can say that this division is 1/10 or 0.1 mm. ये division तुम्हारा है 0.1 mm. With the same way, this division you can say 2/10 or not. हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो कि तुम्हारा जो ये वाला डिवीजन है ये 2/10. This one is your 3/10. This one is your 4/10. And along with that, like this one will be your 9/10, और ये वाला होगा तुम्हारा 10/10, जिसको तुमने लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर. तो इस डिस्कशन का मतलब क्या है? इस डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि जब भी हम सेंटीमीटर स्केल को ध्यान से देखते हैं तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल 8 डिवीजन, या इनको इंक्लूड करके टोटल 10 डिवीजन है. और इस 10 डिवीजन के बीच में जो 8 डिवीजन है, यहाँ पे हमको 8 रेशनल नंबर देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ p by q है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q डोंट हैव एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1. 4/10 को तुम क्या कर सकते हो? 4/10, 2 2 4, 2 5 10. तो 4/10 को तुम लिख सकते हो लाइक दैट 2/3.
5 विद द सेम वे। जो भी ज्यादा बड़े नंबर जैसे 2/10 है तो तुम लिख सकते हो 1/5 लाइक दैट। इट मीन्स 0 से 1 के बीच में तुमको टोटल 9 रेशनल नंबर देखने को मिल सकते हैं, 8 रेशनल नंबर देखने को मिल सकते हैं 0 और 1 को अगर हटा दे तो। इट मीन्स in every integer in between two integers right now we can confirm that there are how many rational numbers are over there, 8 rational number are over there. Again if I am going to confine these portion, अगर मैं इस portion को वापस से जूम करूं तो मुझको इसके बीच में भी एक रेशनल नंबर देखने को मिल जाएगा। This method is the general arithmetic method that is called the average method। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये 0.4 है और ये 0.5 है, इसके बीच का पॉइंट कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे सर आई विल टेक द एवरेज। इट मीन्स 1/2 इन ब्रैकेट 4 + 5, 4 + 5 होता है 9/2 और आंसर विल कम्स आउट टू बी 4.5। तो तुम इसके बीच का एक पॉइंट तुमको क्या मिल गया, 4.5 मिल गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द rational number in between two number, only you have to take the average of that rational number. With the same way, if I want to calculate the another rational number in between 1/10 and 3/10, what I will do, only I will take the average. So it will become 1/10 plus 3/10. Again you have to take the LCM 1/2. LCM of 10 will comes out to be 10. 3 plus 1 will become 4/10 और answer will comes out to be 2 2s 4, 2 5s 10, 1/5. तो 1/10 और 3/10 के बीच में एक दूसरा रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि सर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर या इन बिटवीन टू इंटीजर्स हाउ मेनी रेशनल नंबर यू कैन इंसर्ट। Actually you can insert infinite many numbers, there is no end. Yes, there is no end, you can insert infinite many numbers and it only depends upon the simple method of your arithmetic progression that always you have to take the average of two number, and when you will take the average of two number you will find the number in between two number, either it can be your integers or it can be your रेशनल नंबर। तो अभी तक जो बात हमने सीखी अगर हम उसको एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में समझना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ दिस वन इज योर नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में कोई दो पॉइंट है, दिस वन इज योर पॉइंट ए एंड दिस वन इज योर पॉइंट बी। इसके बीच का एक पॉइंट तुमको निकालना है तो वो पॉइंट होगा a + b डिवाइडेड बाई 2, एज सिंपल एज दैट। A and B can be any number, it can be your integers, it can be your rational number. So the number between A and B can be calculated as taking the average of A and B and it will become A + B whole divided by 2. So our next slide will be types of rational number. Rational number कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ एग्जाम्पल लेके रखा है। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे लाइक 1/2, 7/5, 253/4। When you will divide the denominator from numerator, you will get the exact decimal point. मतलब 1/2 को डिवाइड करोगे तो तुमको अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिल जाएगा। 7.5 को डिवाइड करोगे, इसका मतलब जब तुम ऊपर वाले सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करोगे, ऑलवेज यू विल गेट अ रिमाइंडर एज 0। सब में तुमको रिमाइंडर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने सेकंड एग्जांपल लेके रखे हैं, जब तुम उसको डिवाइड करने जाओगे, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 10/3, तो 3 को 10 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा दिया 0, 3 3 ज़ा 9, 1.03333 कब, अप टू इनफाइनाइट पॉइंट। मतलब इस तरह के डिवीजन में कभी भी तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। तो इस बेसिस पे रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट, ऐसे रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करने पर तुमको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाती है, और ऐसे रेशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाओ, यू विल नेवर गेट अ 0 एज अ रिमाइंडर, और यू कैन से there is a infinite many possibilities or infinite many frequencies that will come after your decimal points. तो इस बेसिस पर ऐसे रेशनल नंबर जिनके रिमाइंडर 0 आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म, या फिर टर्मिनेटिंग मीन्स तुमने टर्मिनेट कर दिया, तुमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड किया, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टोरी फिनिश। इस तरह के रेशनल नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनमें कभी भी तुमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, मतलब तुम डिवाइड करते जाओगे और एक कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। Our next topic is what are the properties of rational number. So again, if I am assuming, if I am saying that if A and B are two rational number, मैं ऐसा assume करके चल रहा हूं क्या कि A और B तुम्हारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं। If A and B are two rational number, then whatever the
operator you are going to apply on these two rational number, the answer will always comes out to be a kind of rational number. Example, if I am going to say a plus b, तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा, it's also a kind of your rational number. यानी कि तुम दो रेशनल नंबर को जब भी ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा. तुम जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आंसर हमेशा क्या आएगा, द आंसर विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी योर रेशनल नंबर. इवन जब तुम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर एक रेशनल नंबर ही आने वाला है, और तुम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तब भी आंसर एक रेशनल नंबर ही आने वाला है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, according to the mathematics, if you are going to apply addition, subtraction, multiplication or division on the two rational number, then the answer will always comes out to be a kind of your rational number. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आने वाली है. ओके सो हाँ, तो एक नेक्स्ट ट्रिक है कि कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू चेक that the given rational number is a terminating decimal expansion or नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्योंकि अभी हमने ये सीखा है कि रेशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक वो जो टर्मिनेट हो जाते हैं और दूसरे वो जो टर्मिनेट नहीं होते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में एक और कंफ्यूजन आता है. वो कंफ्यूजन ये होता है कि जब तुम इर्रेशनल नंबर पढ़ोगे तो इर्रेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म के होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म मीन्स आफ्टर डेसिमल उन पे भी कंटिन्यूअस नंबर आते चले जाते हैं. लेकिन इर्रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो नंबर डेसिमल के बाद आएंगे वो किसी पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हैं. एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू से 1.33333, इट इज अ काइंड ऑफ योर रेशनल नंबर बिकॉज इट इज फॉलोइंग द सेम प्रॉपर्टी. डेसिमल के बाद 3 आता चला जा रहा है जो कि इनफाइनाइट नंबर तक आएगा और ये एक तरह का एग्जैक्ट पैटर्न है. बट इफ आई एम गोइंग टू से 1.342567198124 up to infinite, then this one is your kind of irrational number. ये नंबर तुम्हारा कैसा नंबर है, irrational नंबर है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये किसी भी तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. As we will come in our irrational numbers topic, we will discover this detail in a very broad manner. तो अभी ये बताना जरूरी लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इसको कवर कर लेना चाहिए. ओके, सो द प्रॉब्लम इज सेइंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू चेक दैट गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. So for this kind of problem, I will give you the simplest trick. You have to follow that trick. Whatever the question given to you, you can easily solve it. तो ट्रिक क्या है, चलो और देखते हैं. सपोज करो हाँ, तुम्हारे पास कोई रेशनल नंबर है a बाई बी के फॉर्म में. किस फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में. और तुमको ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका डिनोमिनेटर है इसका तुमको लेना है एलसीएम. क्या करना है, एलसीएम लेना है. एलसीएम लेने के बाद अगर तुमको डिनोमिनेटर में इस तरह का पैटर्न मिलता है 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n, इस टाइप का तुमको कोई पैटर्न मिलता है 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू योर होल नंबर. किससे ये रिलेटेड है, m एंड n होल नंबर से. और होल नंबर तुमको पता ही है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. तो अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो ऐसा रेशनल नंबर तुम्हारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्या होगा, इट विल बी योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. प्लीज रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन. अदर देन दैट, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो सपोज करो 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n में कभी ऐसा होगा कि तुमको 5 की पावर 7 तो दिख रहा होगा लेकिन 2 का कोई फैक्टर ही नहीं दिख रहा होगा. तो तुमको लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंट रूल, बिकॉज वी ऑलरेडी नो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1. प्रीवियस क्लास में तुम पढ़ ही चुके हो कि a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है. तो ऐसा तुमको कभी दिखे कि तुमको कोई सर यहाँ पे 5 की पावर n तो दिख रहा है लेकिन 2 की पावर m तो गायब ही हो गया, तो प्लीज रिमेंबर दैट a की पावर 0 1 होता है. सो यू कैन से 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 0. अगर ऐसा भी पैटर्न बन रहा है, अगेन इट विल बी योर टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. इसके सिवा अगर कोई ऐसा पैटर्न बन जाए जिसमें सपोज करो आ जाए 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और एक कोई तीसरा नंबर आ जाए, जैसे ही तीसरा नंबर आएगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं. चलो एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं.